Welcome in YouTube channel Unacademy Life 7 by MP Singh. Today I will discuss cell division, meiotic cell division or meiosis inside the body cell or animal or plant. You know the meiotic cell division takes place in the sex cell in the gametophytic to form the gametophytic cell, gametophyte, in the formation of gamete, either spermatogenesis or oogenesis. Now I will discuss meiotic cell division in detail, which occurs in reproductive cell. The meiotic cell division, first of all, I will say in detail the significance. First, after completing meiotic cell division, 4 daughter cells are formed. Second significance, the number of chromosome in daughter cell, that will be half of the parent cell. It means the diploid cells becomes haploid. Now, come to the point, what stages occurs in meiotic cell division or meiosis? Meiosis, I will take this division in 2 parts. Today I am discuss about first part of meiosis. Meiosis divided into 2, meiosis first and meiosis second. Meiosis first and meiosis second. In meiosis first, prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. In prophase first, there are 5 stages and this stage is very long. The 5 stages are leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis. After diakinesis, cell division enters in metaphase first, anaphase first, telophase first. After completing telophase first, 2 daughter nuclei, 2 daughter cells are formed and both daughter cell enters in meiosis second, and the stages of meiosis second is prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second. इस प्रकार से हम मियोसिस में ये देखते हैं कि इसमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं. एक प्रवस्था को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, दूसरी को मियोसिस सेकंड कहते हैं. मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट ये लंबी प्रवस्था है. ये 5 सब स्टेजेस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन and diakinesis. After completing diakinesis, it undergoes metaphase first, anaphase first and telophase first. इस प्रकार से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन मियोसिस फर्स्ट में हो जाता है. दूसरे शब्दों में कहते हैं हम कि इन केस ऑफ मियोसिस, फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन. इसमें इसी स्टेज में मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट गेट हाफ देन पेरेंट सेल एंड सेकेंड इज ऑफ माइटोटिक टाइप. तो यू कैन से meiosis first is reductional division
and meiosis second is of mitotic type. अब हम आज के वीडियो में ये लेते हैं, आज के वीडियो में हम ये लेंगे कि किस प्रकार से स्टेजेज में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से स्टेजेज में परिवर्तन होता है। तो आज एक लंबी प्रावस्था प्रोफेज फर्स्ट की ले रहे हैं, जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। यहां पर मैंने डायग्राम दिया है, याद रखिएगा। डायग्राम के नीचे जो यहां जो मैंने इसके स्टेट में दिया है, वो चेंजेस दिया है कि क्या चेंजेस इसमें होते हैं। तो in leptotin stage, what changes will occur? That is on the board. First, volume of nucleus increases in size. Volume of nucleus increases in size. ये first chain. Now second chain, nuclear reticulum opens. आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रेटिकुलम उलझा हुआ होता है, बट इन दिस स्टेज न्यूक्लियर रेटिकुलम ओपन्स। इन लेप्टोटीन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हाफ ऑफ द क्रोमोजोम दैट विल बी मेल एंड हाफ ऑफ द क्रोमोजोम दैट विल बी फीमेल, बट क्रोमोजोम्स कैरिंग सिमिलर कैरेक्टर, सो दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोजोम। इसमें आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूं हिंदी में। क्रोमोजोम का जो परिवर्तन हो रहा है, तो पहला परिवर्तन होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये साइज में इंक्रीज कर जाता है। दूसरी चीज, न्यूक्लियर रेटिकुलम खुल जाता है। बीडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हाफ क्रोमोजोम मेल का और हाफ क्रोमोजोम जो है ये फीमेल का होता है। दोनों के कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोजोम कहा जाता है। दैट स्टेज इज लेप्टोटीन स्टेज। इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस इज डिस्टिंक्ट, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल इज डिस्टिंक्ट, देयर इज नो अल्टरेशन, there is no change in these three structures. Now next structure, that is zygotine stage. Zygos means pairing. In this stage, pairing of homologous chromosome takes place. Pairing of homologous chromosome takes place. This is known as synapsis. This is known as synapsis, and each pair is called bivalent, and each pair is called bivalent. Pairing is specific, called synaptonemal complex. यहां पर क्रोमोजोम पेयर में आ जाते हैं। ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम, इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, और यह सिनेप्सिस बहुत स्पेसिफिक होता है, और जो फॉर्म करता है इसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। नाउ जाइगोटीन स्टेज अंडरगोज पैकेटीन। पैकेटीन स्टेज में क्रोमोसोम बिकम्स थिकेंड, क्रोमोसोम बिकम्स थिकेंड ड्यू टू कॉइलिंग। होमोलोगस क्रोमोजोम ट्वाइन, एक दूसरे से उलझेंगे, ट्वाइन ईच अदर एंड स्टार्ट स्प्लिटिंग। यहाँ पर दोनों क्रोमेटिक ये स्प्लिट होना प्रारंभ कर देते हैं, सेपरेट होना प्रारंभ कर देते हैं। दिस स्टेज इज नोन एज पैकेटिन स्टेज। आप डायग्राम में क्या करेंगे, धीरे धीरे क्रमशः आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसऑर्गेनाइज दिखाना शुरू कर देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसऑर्गेनाइज करना आप शुरू कर देंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये धीरे धीरे डिसऑर्गेनाइज हो जाता है।
मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्लू से और न्यूक्लियोलस को रेड से शो किया है। तो ये है रहा आपका पैकेटिव स्टेज। पैकेटिव स्टेज दैट अंडरगो इन डिप्लोट्यून स्टेज। यहां पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम में केवल इंटरचेंज दिखाने के लिए एक क्रोमोसोम को हमने रेड से बनाया है और दूसरे क्रोमोसोम को मैंने ब्लैक से बनाया है। जो अपोजिट आर्म है क्रोमोसोम की, ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। और ये जो क्रॉस का पॉइंट है, इस क्रॉस के पॉइंट को हम कहते हैं काइजमेटा। क्रॉस के पॉइंट को काइजमेटा कहते हैं। और ये फिनोमेनन जो है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ये फिनोमेनन दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। यहां मैंने लिख दिया है, आपको इतना लिखना है। इन दिस स्टेज homologous chromosome are in contact at one or more point known as chiasmata। वो जो पॉइंट है कांटेक्ट का दैट इज chiasmata। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिक पार्ट बिटवीन होमोलोगस अकर्स ड्यू टू ब्रेकेज एंड रिज्वाइन। अब इस पॉइंट पर ये टूट भी जाते हैं और रिज्वाइन करते हैं। कैसे रिज्वाइन करते हैं? जैसे हमने ये रेड लिया और ये मैंने ब्लैक लिया, व्हाइट लिया। इसका यह पोर्शन कट करके इससे जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, सफेद पोर्शन यहां जुड़ गया और रेड पोर्शन जो है ये यहां जुड़ गया। दैट इज द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट इन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। आप कह सकते हैं मेल का टर्मिनल फीमेल से, फीमेल का टर्मिनल मेल से जुड़ जाता है। यहां लिखा है मैंने, एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिक पार्ट बिटवीन होमोलोगस अकर्स ड्यू टू ब्रेकेज एंड रिज्वाइनिंग। पहले टूटेगा, इसके बाद एक दूसरे से रिज्वाइन कर लेगा। ऑफ वीकर क्रोमैटिड एट chiasmata, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर एंड ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। इस प्रकार से जहां पर chiasmata का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं पर एक क्रोमोसोम ब्रेक करते हैं। जैसे मैं एक काला ब्रेक हुआ रेड से, रेड का पोर्शन काले से जुड़ा टर्मिनल, काले का पोर्शन रेड से जुड़ा टर्मिनल। इस प्रकार से इंटरचेंज, एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल दैट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। आप यूं कह सकते हैं, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। आफ्टर chiasmata, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर ब्रेकेज एंड रिज्वाइनिंग, अब ये जुड़ गए। यहां देखिए, इसमें मैंने दिखाया है कि रेड के टर्मिनल पर ब्लैक, ब्लैक के टर्मिनल पर रेड। इसका मतलब रेड का टर्मिनल ब्लैक से और ब्लैक का टर्मिनल रेड से, ये जुड़ गया। यहां इंटरचेंज हो रहा है सेगमेंट का, सेगमेंट का इंटरचेंज। और जब सेगमेंट का इंटरचेंज हो रहा है, इसका मतलब हेरिडिटरी मटेरियल जो है ये इंटरचेंज हो रहा है। यही कारण है कि संतान में माता और पिता दोनों के लक्षण आ जाते हैं। यह स्टेज जब दिखाई पड़े तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में जो दूसरा चेंज होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। सेंट्रोसोम दोनों पोल्स पर चले जाते हैं और यहीं से स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहीं से स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों जो हैं, ये सारी स्टेजेस जो हैं प्रोफेज फर्स्ट की है। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट में जब आप स्टडी करेंगे तो इसे आप दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा पार्ट है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज फर्स्ट दैट इज लार्जेस्ट स्टेज, कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। एंड अदर स्टेजेस आर सिंपलर: मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट. After telophase first, 2 daughter cells are formed. Both daughter cells undergo meiosis second
that is as simply mitotic type. The first division is reductional division and second is of mitotic type. इसी डिवीजन में अगर मान लीजिए 4 क्रोमोसोम ले रहे हैं हम, तो डॉटर सेल में 2-2 हो जाएंगे। अब हम एक बार फिर आपको हर स्टेज के बारे में बता रहे हैं। मैंने स्टेज का डायग्राम दिया है और स्टेज के डायग्राम के बाद क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, ये चेंजेस मैंने लिख दिया है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, इनको आप नोट्स में बना लें। लेप्टोटीन स्टेज, इसमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन साइज। सेकेंड, न्यूक्लियर रेटिकुलम ओपन्स, इंटरफेज में उलझे रहते हैं, लेकिन यहां न्यूक्लियर रेटिकुलम जो है ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। थर्ड, हाफ ऑफ द क्रोमोजोम, अब इसमें जो क्रोमोजोम है, जैसे मैंने 4 लिया तो 2 क्रोमोजोम मेल के हैं और 2 क्रोमोजोम फीमेल के। हाफ ऑफ द क्रोमोजोम आर ऑफ मेल एंड हाफ आर ऑफ द फीमेल। क्रोमोजोम कैरिंग इक्वल कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, so they are known as homologous chromosome. That is the stage of leptoteen. Leptoteen stage undergo zygote. Zygos means होता है pairing. The pairing of homologous chromosome takes place. Pairing of homologous chromosome takes place. And this pairing, this phenomenon, this process is known as synapsis. And they form synaptonymal complex. They form synaptonymal complex. Now undergo Pachytene stage. Pachytene stage. In Pachytene stage, chromosome appears thickened and shorter and due to coiling. Homologous chromosome around each other and start splitting. ये स्प्लिट करना शुरू कर देता है। होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट स्प्लिटिंग, विभक्त होता है। क्रोमैटिड्स एक एक क्रोमोजोम में या 4-4 आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमैटिड्स। इसके बाद ये जो अपोजिट आर्म्स हैं, दोनों क्रोमोजोम की जो अपोजिट आर्म्स है, ये अपोजिट आर्म्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और जहां ये क्रॉस करती हैं उस बिंदु को, उस पॉइंट को आप काइज़मेटा कहते हैं। और काइज़मेटा का फॉर्मेशन, द फेनोमेनन इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इसी पॉइंट पर ये ब्रेक हो जाते हैं और एक का टर्मिनल एंड दूसरे के टर्मिनल एंड से जुड़ जाता है, माने ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग बोथ गो साइमल्टेनियसली। इसके बाद इस स्टेज को हम डिप्लोटीन कहते हैं। यहां मैंने करेक्टर लिख दिया है। इसके बाद ये टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में। इस प्रकार से हेरिटरी मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। यही कारण है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स, बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर्स ये ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। इस प्रकार से मियासिस का सबसे बड़ा स्टेज, मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज आज मैंने डिस्कस किया। ये हमारे मियासिस के वीडियो का पार्ट फर्स्ट है और इसमें मैंने डायग्राम के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, ये टोटल चेंजेस मैंने लिखा है। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें। यदि बातें समझ में नहीं आती तो हमें आप क्वेश्चन एराइज करें निश्चित रूप से। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एग्ज़ाम पेपर में लिखना नहीं है, क्योंकि इतना जो है ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है। इसी के साथ मैं आज मियासिस फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट ये पूरा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए, वीडियो पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। क्योंकि वीडियो आप शौकिया देख रहे हैं, वीडियो पढ़ नहीं रहे हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचें और सोच करके इसको गहराई से पढ़ें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।